Hello everyone, I'm Dr. Jones. My job is to help people stay healthy. Let's find out what happens when you go to the doctor. First, the doctor will talk to you and your parents to find out how you feel. Then, the doctor will give you a checkup. A checkup is when the doctor makes sure that your body is healthy. You can get checkups even if you are not sick. The doctor will check to make sure that you are growing well and taking care of your body. They may use special tools like a stethoscope. A stethoscope is used to check your heart and lungs. The doctor might also check your mouth, ears, nose, and other parts of your body. If you are sick or hurt, the doctor may give you something to help you feel better. This could be medicine or a bandage. When your visit is done, the doctor might give you a special prize. A nurse is someone who helps the doctor. This is my friend, Nurse Nancy. Hello, boys and girls. Would you like to know what nurses do? The nurse will ask you questions and write your answers down for the doctor. Nurses may even help the doctor check you. Like doctors, we also want to keep you well and healthy. There are many different types of doctors. This is an optometrist or an eye doctor. The eye doctor checks your eyes to make sure that you can see well. Sometimes the eye doctor may tell you that you need glasses. It seems he has just told it to Billy. Hello, Billy. How was your visit at the optometrist's office? It was amazing. The doctor used a cool machine to check my eyes. It looked like a robot. And I got new green glasses. I can see much better now. Wow, that sure sounds fun. Uh-oh. It looks like Buddy's not feeling too well. Maybe he needs new glasses. No, you'll have to take him to a veterinarian. A veterinarian is a doctor that helps sick animals. If your pet is not feeling well, you can take it to the vet. I see. A vet helps sick animals. Have you ever been to the doctor's office? What type of doctor did you visit? Tell us about it in the comments. Thanks for watching. Goodbye! See you! Goodbye. Subscribe to our channel to stay updated on new videos. Find links to our apps in the comments below. When a doctor orders a series of tests on a patient, it's the job of medical and clinical laboratory technologists and technicians to prepare and perform those tests to help detect diseases or abnormalities. These professionals analyze body fluids, tissue, and cells. Using powerful medical equipment, they look for bacteria, parasites, and abnormal cells.
They also analyze cholesterol levels and cross-match blood samples for transfusions, documenting their results in reports or patient medical records. Since they regularly handle samples and medical instruments contaminated by infectious microbes, they wear protective goggles, gloves, and masks to minimize the risk of contagion. In larger labs and hospitals, technologists and technicians tend to specialize in areas like blood work or microbiology. Most work full-time. In general, technologists supervise the work of technicians. Technicians need an associate's degree in clinical laboratory science, and technologists need a bachelor's degree in medical technology or life sciences. Licensure is required in some states, and certification is often preferred by employers. The work can be stressful, especially when they must perform complex tests accurately and in a limited time. However, they gain satisfaction from knowing they've provided the vital information doctors need to save lives or cure diseases. वाओ प्रिया, आप क्या खाते हैं जो इतने फिट है? मैं तो वैसा कुछ खाती भी नहीं हूँ, फिर भी स्लिम फिट नहीं हो रही हूँ। क्या करूँ? मुझे भी तो बताइए इसका राज, कुछ टिप्स दीजिए ना। इसका राज मेरा जिम है, जिसमें मैं भर्ती हुई हूँ और कुछ ही दिन में ये रिजल्ट है। जिम कहाँ से? और सुना है जिम करना अच्छा नहीं है। हाँ, DFC जिम से। और कौन कहता है कि जिम करना अच्छा नहीं है? फिट रहना भी कोई गलत बात है क्या? DFC जिम, और ये क्या मेल फीमेल दोनों के लिए है? हाँ, DFC जिम एक यूनिसेक्स जिम सेंटर है। यहाँ जिम के साथ साथ भांगड़ा, जुम्बा, एरोबिक्स कराई जाती है और यहाँ एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर है। साथ ही डाइट चार्ट भी देते हैं, एक्टिव ट्रेनिंग होती है। तो आप लोग भी चाहते हैं फिट और हेल्दी रहना तो आज ही ज्वाइन करिए DFC जिम में। हमारा पता अपोजिट सेक्टर 8, हुडा ग्राउंड, अम्बाला सिटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9467105000 इस नंबर पर। अरे ये मानिक कितना दुबला पतला हो गया है, ठीक से खाता पीता नहीं है क्या? खाता है फिर भी ऐसा है, क्या करूं? एक बार डॉक्टर को दिखाओ, कुछ बीमारी हो सकती है। कहाँ पर अच्छा पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है? हमारे यहाँ शाहीन बाग में क्रिप्स हॉस्पिटल के बारे में नहीं सुना आपने? हाँ सुना है, पर वो कैसा है? क्रिप्स हॉस्पिटल में अनुभवी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर उपलब्ध है जो बच्चों की पूरी जाँच करते हैं। पता क्रिप्स हॉस्पिटल, F1, 40 फुटा रोड, शाहीन बाग, नियर कालिंदी कुंज, नई दिल्ली। 110025। कॉन्टैक्ट नंबर 01126946271 या 9891046333 या विजिट करें cripshospital.com। পাপাই কখন থেকে বলছি পড়তে বসতে, কথা কানেই যাচ্ছে না নাকি? কি হয়েছে বৌদি? পাপাইকে বকছো কেন? আরে দেখো না, আমাদের পাপাইটা না একদমই লিখতে চায় না, শুধু বাহানা। বলে খাতায় লিখলে নাকি খাতা ছিঁড়ে যায়। না গো বৌদি, অজুহাত নয়। আমাদের রিমাও আগে তাই বলতো। যখন থেকে জয় খাতা এনে দিয়েছি তখন থেকে শুধু খেলাধুলো বাদ দিয়ে লিখতেই থাকে। জয় খাতা? হ্যাঁ গো, জয় ফুল অফ হ্যাপিনেস। এই খাতার কোয়ালিটি নাম্বার 1। এর কাগজের গুণমানও খুবই ভালো। তাহলে আজই পাপাইকে কিনে দাও জয় খাতা, তারপরে দেখবে শুধু লিখতেই থাকবে। ফ্লিপকার্টেও পাওয়া যাচ্ছে জয় খাতা। পাপাইয়ের জন্য তো বৌদি কিনতে যাচ্ছে। আপনারাও যান, আপনাদের সন্তানের জন্য কিনে আনুন জয় খাতা আর উপভোগ করতে দিন লেখার আনন্দ। ঠিকানাটা হলো সুভাষিনী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বগুলা, পুরাতন পাড়া, নদিয়া। এছাড়া ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ও ডিলারশিপ নিতে যোগাযোগ করুন 8926513717। जो ओपन सर्जरी होती है उसमें फुल जो एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है पेशेंट वो इट टेक्स 4 to 6 वीक्स। जबकि जो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है उसमें जो एक्टिविटी रिज्यूम है वो 1 to 2 वीक्स तक अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर लेते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक बेनिफिट ये भी है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक्टिविटी रिज्यूम बहुत फास्ट होती है, रिकवरी बहुत इनहेंस्ड होती है, अर्ली रिकवरी होती है, हॉस्पिटल स्टे भी बहुत शॉर्ट होता है। जबकि जो ओपन कोलिसिस्टेक्टमी है, जो ओपन टेक्निक से बड़े इंसिजन से करते हैं उसमें हॉस्पिटल स्टे भी इंक्रीज हो जाता है, पेन भी उसी तरह बहुत ज़्यादा रहता है। हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन के लिए स्टे करना पड़ सकता है। उसके बाद आप अपनी जो एक्टिविटी रिज्यूम करनी है वो भी 1-2 हफ्ते लग जाएंगे और कम्प्लीटली एक्टिविटी रिज्यूम करने के लिए आपको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा मुनाफ खान है और मैं एक जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे इस मौजू पर अक्सर लोग सवाल उठाते हैं और वो मौजू ये है कि पित्ते का ऑपरेशन किस तरह का करवाना चाहिए।
उसको ओपन कट या कट लगवा कर करवाएं या फिर कैमरे के ज़रिए पित्ते का ऑपरेशन करवाएं। मेरे पास जो अक्सर मरीज़ आते हैं उनमें से 70 से 80% लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा हम कैमरे वाला ऑपरेशन नहीं करवाएंगे क्योंकि उसमें आप पित्ता पूरा नहीं निकालते और पित्ते का कुछ ना कुछ हिस्सा मरीज़ के अंदर रह जाता है, इसलिए हमारी तरजीह यही है कि हम कट लगवा कर ऑपरेशन करवाएं। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहती हूँ कि पित्ते का ऑपरेशन चाहे कट लगवा कर करवाएं या कैमरे के ज़रिए करवाएं, उन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उन दोनों ऑपरेशन का मकसद पित्ते को निकालना है और उन दोनों ऑपरेशंस में हम पित्ते को पथरियों समेत पूरा निकालते हैं। अब इसके फ़ायदे या नुकसानात क्या हैं या कौन सा ऑपरेशन बेहतर है। अगर हम कैमरे वाले ऑपरेशन की बात करें, जिसको अक्सर लोग लेज़र वाला ऑपरेशन भी समझते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि उसमें हम पेट में 3 से 4 सुराख करते हैं और एक सुराख का साइज़ 1 सेंटीमीटर तक होता है, जिसका मकसद ये है कि मरीज़ को जब हम ज़ख़म बंद करें तो कम से कम टांके लगें, और अगर मरीज़ को टांके कम लगेंगे तो उसकी वजह से ज़ख़म ख़राब होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिस दिन मरीज़ को ऑपरेशन हो उसी दिन मरीज़ को बग़ैर किसी तकलीफ़ के वो चलना फिरना शुरू कर देता है और अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ शुरू कर सकता है। लेकिन अगर हम कट वाले ऑपरेशन की बात करें तो कुछ लोगों में ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिनमें हमें कैमरे वाले ऑपरेशन को कट वाले ऑपरेशन में तब्दील करना पड़ता है, लेकिन उसके नुकसानात ये हैं कि उसके अंदर 6 से 7 सेंटीमीटर का लंबा कट लगता है, जिसकी वजह से टांके भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं और फिर इस ऑपरेशन में ज़ख़म ख़राब होने का चांस भी बढ़ जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात है वो ये है कि क्योंकि कट लंबा होता है और टांके भी ज़्यादा लगते हैं, इसकी वजह से मरीज़ को तकलीफ़ भी कैमरे वाले ऑपरेशन की निस्बत ज़्यादा होती है और वो उठ के चलने फिरने में भी थोड़ा सा झिझकता है। तो लिहाजा अगर आपको पित्ते में पथरियों का मामला है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएं और मुआयने के लिए तशरीफ़ लाएं, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपको बेहतरीन मशवरा दे सकता है कि कैमरे वाला ऑपरेशन बेहतर है या कट वाला ऑपरेशन बेहतर है। लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि दोनों ऑपरेशन में पूरा पित्ता निकलता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आधा पित्ता अंदर रह जाए और आधा पित्ता बाहर निकल आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा मुनाफ खान है और मैं एक जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे इस मौजू पर अक्सर लोग सवाल उठाते हैं और वो मौजू ये है कि पित्ते का ऑपरेशन किस तरह का करवाना चाहिए, उसको ओपन कट या कट लगवा कर करवाएं या फिर कैमरे के ज़रिए पित्ते का ऑपरेशन करवाएं। मेरे पास जो अक्सर मरीज़ आते हैं उनमें से 70 से 80% लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा हम कैमरे वाला ऑपरेशन नहीं करवाएंगे क्योंकि उसमें आप पित्ता पूरा नहीं निकालते और पित्ते का कुछ ना कुछ हिस्सा मरीज़ के अंदर रह जाता है, इसलिए हमारी तरजीह यही है कि हम कट लगवा कर ऑपरेशन करवाएं। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहती हूँ कि पित्ते का ऑपरेशन चाहे कट लगवा कर करवाएं या कैमरे के ज़रिए करवाएं, उन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उन दोनों ऑपरेशन का मकसद पित्ते को निकालना है और उन दोनों ऑपरेशंस में हम पित्ते को पथरियों समेत पूरा निकालते हैं। अब इसके फ़ायदे या नुकसानात क्या हैं या कौन सा ऑपरेशन बेहतर है। अगर हम कैमरे वाले ऑपरेशन की बात करें, जिसको अक्सर लोग लेज़र वाला ऑपरेशन भी समझते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि उसमें हम पेट में 3 से 4 सुराख करते हैं और एक सुराख का साइज़ 1 सेंटीमीटर तक होता है, जिसका मकसद ये है कि मरीज़ को जब हम ज़ख़म बंद करें तो कम से कम टांके लगें, और अगर मरीज़ को टांके कम लगेंगे तो उसकी वजह से ज़ख़म ख़राब होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिस दिन मरीज़ को ऑपरेशन हो उसी दिन मरीज़ को बग़ैर किसी तकलीफ़ के
वो चलना फिरना शुरू कर देता है और अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ शुरू कर सकता है। लेकिन अगर हम कट वाले ऑपरेशन की बात करें तो कुछ लोगों में ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिनमें हमें कैमरे वाले ऑपरेशन को कट वाले ऑपरेशन में तब्दील करना पड़ता है, लेकिन उसके नुकसानात ये हैं कि उसके अंदर 6 से 7 सेंटीमीटर का लंबा कट लगता है, जिसकी वजह से टांके भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं और फिर इस ऑपरेशन में ज़ख्म ख़राब होने का चांस भी बढ़ जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात है वो ये है कि क्योंकि कट लंबा होता है और टांके भी ज़्यादा लगते हैं, इसकी वजह से मरीज़ को तकलीफ़ भी कैमरे वाले ऑपरेशन की निस्बत ज़्यादा होती है और वो उठ के चलने फिरने में भी थोड़ा सा झिझकता है। तो लिहाजा अगर आपको पित्ते में पत्थरियों का मामला है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएं और मुआयने के लिए तशरीफ़ लाएं, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपको बेहतरीन मशवरा दे सकता है कि कैमरे वाला ऑपरेशन बेहतर है या कट वाला ऑपरेशन बेहतर है। लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि दोनों ऑपरेशन में पूरा पित्ता निकलता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आधा पित्ता अंदर रह जाए और आधा पित्ता बाहर निकल आए। शुक्रिया। जो ओपन सर्जरी होती है उसमें फुल जो एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है पेशेंट, वो इट टेक्स 4 to 6 वीक्स। जबकि जो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है उसमें जो एक्टिविटी रिज्यूम है वो 1 to 2 वीक्स तक अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर लेते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक बेनिफिट ये भी है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक्टिविटी रिज्यूम बहुत फास्ट होती है, रिकवरी बहुत इनहेंस्ड होती है, अर्ली रिकवरी होती है, हॉस्पिटल स्टे भी बहुत शॉर्ट होता है। जबकि जो ओपन कोलिसिस्टेक्टमी है, जो ओपन टेक्निक से बड़े इंसिजन से करते हैं, उसमें हॉस्पिटल स्टे भी इंक्रीज हो जाता है, पेन भी उसी तरह बहुत ज़्यादा रहता है, हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन के लिए स्टे करना पड़ सकता है। उसके बाद आप अपनी जो एक्टिविटी रिज्यूम करनी वो भी 1-2 हफ्ते लग जाएंगे और कम्प्लीटली एक्टिविटी रिज्यूम करने के लिए आपको 4 से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नीरा भान, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन विद अराउंड 35 years ऑफ एक्सपीरियंस। और आज हम बात कर रहे हैं दूरबीन की सर्जरी या लेप्रोस्कोपी से रिकवरी या ठीक होने के प्रोसेस के बारे में। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में छोटे छोटे कट्स लगते हैं 5 से 10 मिलीमीटर के। इसकी अपेक्षा ओपन गायनी सर्जरी में 8 से 10 या 12 सेंटीमीटर का ओपन कट लगता है। डिपेंड करता है कि क्या सर्जरी आपकी होने वाली है। तो जाहिर है जब छोटे छोटे कट्स लगेंगे तो जल्दी हीलिंग होगी, कम दर्द होगा और जल्दी आप अपने कामकाज करके वापस बैक टू वर्क जा सकेंगे। ये प्रोसीजर हम आपका जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, इसलिए आपको ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल महसूस नहीं होता कि कुछ हो रहा है। लेकिन प्रोसीजर के बाद आपको अगले 1-2 दिन तक थोड़ा सा शोल्डर टिप पेन, पेट में क्रैम्प्स या पेट में अफारा या गैसी महसूस हो सकती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम आपका टमी, पेट इन्फ्लेट करते हैं, गुब्बारे की तरह फुलाते हैं एक गैस के साथ, ताकि सर्जरी आपके लिए सेफ रहे। ये यूजुअली 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। माइनर पेन किलर्स की कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। जनरल एनेस्थीसिया के बाद कुछ घंटे तक आप थोड़ी से डिज़ी, ग्रॉगी से फील कर सकते हैं और किसी किसी के गले में थोड़ी सी अजीब सी सेंसेशन, खराश सी हो सकती है, क्योंकि हम एक ब्रीदिंग ट्यूब डालते हैं आपको बेहोश करने के लिए। अगेन ये अपने आप 2-4 दिन में सेटल हो जाता है, लेकिन कभी कभी पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अगले दिन से ही नहा सकते हैं क्योंकि हम आपके वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाते हैं। खाना पीना, अगर माइनर प्रोसीजर जैसे कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हुआ है या बच्चा बंद करने का ऑपरेशन हुआ है दूरबीन के थ्रू, तब आपको 3-4 घंटे के बाद हम फ्लूइड्स वगैरह देना शुरू कर देते हैं। पर अगर हमने आपकी मेजर सर्जरी कोई करी है कि जैसे टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी करी है, बड़ा सा फाइब्रॉइड निकाला है, तो उस केस में ज़्यादा टाइम तक खाली पेट रख के धीरे धीरे करके खाना पीना शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सर्जरी हुई है। अगर डायग्नोस्टिक सिर्फ ये देखने के लिए हुई है कि क्या बीमारी है, या माइनर प्रोसीजर जैसे बच्चे बंद करने का ऑपरेशन या थोड़े बहुत जाले हटाए हैं, या इवन एक्टोपिक का अगर एक ट्यूब निकाली है, तो अक्सर हम सेम डे या एक रात रख के आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। पर कभी कभी मेजर सर्जरी जब होती है तब
उसके साथ हमें आपको 2-3 दिन तक अस्पताल में रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेप्रोस्कोप का डायमीटर 10 mm होता है, तो आपका जो बेली बटन के पास, नाभि के पास का इंसिजन होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है यूजुअली, और साइड वाले यूजुअली 5 मिलीमीटर के होते हैं। और एक इंसिजन लगेगा या 4-5 लगेंगे, अगेन वो डिपेंड करता है कि हमने आपकी किस तरह की सर्जरी करी है। सिर्फ दूरबीन वाली देखने के लिए बीमारी करी है या बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें से निकाली हैं। एक्सरसाइज, आप जैसे होश में आते हैं, हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि आप करवट लें, एड़ियाँ मोड़ें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपनी एड़ियाँ चलाएं, अपने पैरों की फिंगर्स चलाएं, आप अपने नीज घुटनों को मोड़ें, सीधा करें, और थाइस को मोड़ें, सीधा करें। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि ब्लड क्लॉट्स ना बने। अगर आप ओवरवेट हैं, मोटे हैं, या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, लंबी सर्जरी है, तो फिर कई बार हम डीवीटी पंप, जो कि आपके घुटनों के नीचे टांगों में होता है, उसको फुलाता और कंप्रेस करता रहता है जिससे खून का बहाव बढ़िया बना रहे, वो भी कुछ घंटों के लिए हो सकता है कि हम दें। जहाँ तक चलने का सवाल है, जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा आप चलें उतना ही आपके लिए अच्छा है। भारी वज़न उठाना हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मेजर सर्जरी हुई है तो कुछ हफ्तों के लिए अवॉइड करें। इंटीमेट होना भी डिपेंड करता है कि क्या सर्जरी हुई है दूरबीन से। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी अगर आपकी पीरियड्स के बाद हुई है तो हम उसी साइकिल में आपको बोलते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं, ताकि प्रेगनेंसी उसी साइकिल में ठहर जाए, तो भी हम बिल्कुल खुश रहते हैं। किंतु अगर आपकी टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी हुई है, उसमें पेट के ज़रिए हमने नीचे के एरिया में स्टिचेस लगाए होते हैं, इसलिए हम 3 मंथ्स तक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी मैरिटल लाइफ न रिज्यूम करें। आप कब काम पे वापस जाएं, ये डिपेंड करता है आपकी क्या एज है, आपको और क्या कोमॉर्बिडिटीज़ है। जैसे शुगर के मरीज़ों में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में, खून की कमी वालों में हीलिंग थोड़े लेट होती है। आप क्या काम करते हैं, जैसे कि मेरी एक पेशेंट थी, कथक डांसर टीचर थी, और उन्होंने बड़ी जल्दी काम रिज्यूम कर दिया, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम आई। तो ऐसा है कि हर एक के लिए नहीं है कि आप क्विकली रिटर्न टू वर्क कर लें, वो आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सिटिंग कंप्यूटर जॉब है तो आप बहुत जल्दी काम पे जा सकते हैं। अगर आप डांस टीचर, स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम तक काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, मे बी 4 to 6 वीक्स ऑल्सो। पर ज़्यादातर लोग हफ्ते 2 हफ्ते में अपने काम पे रिटर्न कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सेफ जाएगी और आप जल्दी से रिकवर करेंगे। इसी के साथ हम आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर ये फ़ायदेमंद रहा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर यूट्यूब चैनल गायनीपीडिया। बाय बाय। इतनी बेचैनी लेके कैसे जिएगा कोई, इतनी चाहत दामन में कैसे रखेगा कोई, चैन कहीं लेने न दे मुझको प्यार। जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। देख भाई, अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। देख भाई, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल